Hi friends, in this lecture we are going to discuss the topic of sale of goods on approval or return basis. In a normal business transaction, a sale is recorded immediately when the sale takes place. But what will happen in case of a sale where the businessman is selling the goods with an option given to the retailer that they may either retain the goods or return the goods within a specified time period? You may think why a businessman would give such an option to the retailer. Let us imagine a situation where the businessman is trying to enter a new market or maybe introduce a new product in the existing market. Do you think the retailer will be readily accepting the goods? Because no one knows what fate the goods hold. So in these cases, businessman gives option to his retailers such that if the sale takes place, well and good. But if you are not able to further sell the goods, you can return them. This concept is known as sale of goods on approval or return basis. That is, either you approve the goods, you take the goods in your ownership, and if you are not able to do that, return the goods. So इस ट्रांजैक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कुछ डिफरेंट तरीके से की जाती है, इसको हम समझेंगे आज. सो फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. देयर इज चेंज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. Yeah, because the goods are moving from the businessman to the retailer. However, it does not involve transfer of ownership. The ownership remains with the businessman. Only when the retailer accepts the good, then only the ownership is transferred to him. So until then, the goods are the property of the businessman. The customer does not incur any liability when the goods are merely sent to him. So, imagine a situation जहाँ businessman ने कुछ goods retailer को भेजे and वो goods damage हो गए, किसी rodent ने उसे खा लिया या fire में damage हो गए, तो who do you think will have the liability of those goods? The businessman. Because it is very clear that until and unless the retailer has accepted the goods, till then the ownership does not transfer. So उस वक्त तक कोई भी डैमेज हो जाए, कुछ भी लाइबिलिटी अटैच हो जाए उन गुड्स के साथ में, it will be of the businessman. Now this entire transaction is governed by Sale of Goods Act 1930. तो आप जानते हैं कि इस एक्ट में इसके बारे में क्या लिखा है. As per the definition given under Sale of Goods Act 1930, in respect of such goods, the sale will take place when he signifies his approval to the seller. Simple है, उसने कहा कि हाँ I am accepting the goods because I will be able to sell it further on. या फिर if he does not signifies his approval to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, यानी कि उसने हाँ तो नहीं किया बट उसने ना भी नहीं किया. अगर कोई एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया था उसे कि इस वक्त में आपको रिप्लाई देना है, अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया है एंड उसने अभी तक मना नहीं किया है, इट विल बी अज्यूम्ड ही हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स. और अगर कोई टाइम फिक्स ना किया गया है तो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद में हम मान लेंगे कि हाँ हमारी सेल टेक प्लेस हो चुकी है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि या तो जब वो अप्रूव कर दे या फिर वो मना ना करे, इन दोनों ही केसेस में हम उसे सेल मानेंगे. अगर वो गुड्स को रिटर्न कर देता है तब वो सेल नहीं माना जाएगा. तो हैविंग अंडरस्टूड व्हाट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मीन, हम अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स, इसको 3 तरीके से अकाउंटिंग किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. कितना ट्रांजैक्शंस जो है आपका वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होता है. तो सबसे पहले जो किया जाता है दैट इज़ कैजुअली, यानी कि आपके गुड्स कभी कभी ही रिटर्न बेसिस पे जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा. या फिर फ्रीक्वेंटली, यानी कि
थोड़े ज़्यादा, मोर देन कैजुअली। एंड अगर आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन ही है कि आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ही करते हैं, यानी कि आपकी सारी सेल्स जो है वो इस बेसिस पे की जाती है, तो उसे हम न्यूमेरसली का नाम देंगे। तो इन तीनों ही तरीके में अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है, हम वन बाय वन उसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो कैजुअली जब किया जाता है तो माना जाएगा कि हम लोग उसे नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेंगे। व्हेन द गुड्स पास ऑन टू द पर्सन, जो रिटेलर को गुड्स दिया जाएगा, हम तभी मान लेंगे कि हाँ सेल हो गई है। सो इन दैट केस वी विल बी ट्रीटिंग इट एज an ordinary sale, treat as an ordinary sale, okay? एंड उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आइदर एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगा, उसे हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, यानी कि कैजुअली से ज़्यादा बट न्यूमरसली से कम, तब हम मेंटेन करेंगे एक सेल और रिटर्न रजिस्टर। इस रजिस्टर के कुछ कॉलम्स होंगे जिसमें कि गुड्स सेंट की डिटेल्स होंगे, गुड्स अप्रूव्ड के डिटेल्स होंगे, एंड गुड्स रिजेक्टेड के डिटेल होंगे, और लास्टली इनका जो बैलेंस बचेगा, यानी कि जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या होगा, उसको हम बैलेंस में रख देंगे। अगर आपका नॉर्मल फीचर ही है बिज़नेस का, जहाँ पे कि सारे गुड्स जो है रिटर्न बेसिस पे सेल किए जाते हैं, तो वहाँ पे मेमोरेंडम बुक्स प्रिपेयर की जाएंगी। मेमोरेंडम मीन्स टेम्पररी बुक्स। ये आपके नॉर्मल लेजर के पार्ट नहीं होते हैं, इन्हें सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है एंड पीरियड एंड पे एक सिंगल एंट्री से इसके इफ़ेक्ट को नॉर्मल बुक्स में ला दिया जाता है। तो द मेमोरेंडम बुक्स टू बी प्रिपेयर्ड हियर विल बी नंबर 1 सेल और रिटर्न डे बुक। हम जैसे परचेज डे बुक बनाते हैं, सेल्स डे बुक बनाते हैं, वैसे ही सेल और रिटर्न डे बुक भी बना सकते हैं। एंड इस डे बुक के बेसिस पे जिस तरह हम लोग परचेज डे बुक से परचेज लेजर में पोस्टिंग करते थे, उसी तरह सेल और रिटर्न डे बुक से हम लोग सेल और रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। So we will be discussing all of these in details further onwards. अभी हम स्टार्ट करते हैं when the business is selling the goods on return basis casually, यानी once in a while, एक महीने में एक बार मान लीजिए ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम क्या ट्रीटमेंट फॉलो करने वाले हैं। So when the business sends goods casually on sale और return basis, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वी विल बी पासिंग जर्नल एंट्रीज एज वी डू इन द केस ऑफ अ नॉर्मल सेल। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन यू सेल द गुड्स? प्रीटी सिंपल, इट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल। अब आपने जब गुड्स को सेल कर दिया है तो क्या सिचुएशंस अराइज हो सकती है? या तो गुड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, या फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे, या आप ईयर एंड पे पहुंच गए हैं और कस्टमर के पास ही गुड्स पड़े हैं, बट द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द गुड्स हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि अभी भी उसके पास वक्त है टू सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस और हिज रिजेक्शन। तो अभी तक हम उसका किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे वो हमें डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये सिचुएशन डिस्कस करते हैं वेयर द गुड्स आर एक्सेप्टेड। अब अगर गुड्स एक्सेप्ट हो जाएं, यानी कि हम ऑलरेडी सेल की एंट्री मार के आए हैं,
अगर वो गुड्स एक्सेप्ट हो रहे तो क्या हमें फर्दर एंट्री की ज़रूरत है? द आंसर इज नो, बिकॉज हम ऑलरेडी सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं. सो अगर जिस प्राइस पे हमने भेजा था उसी पे वो रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, उस गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, देन नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. बट इमेजिन अ सिचुएशन, आपने गुड्स भेजे थे 100 रुपीज़ में, but that person he is further able to sell the goods at 150. So the goods are being accepted at a higher price. Don't you think we will have to account for that as a sale at a higher price? इसकी हम एंट्री क्या डालेंगे? हमें अपने डेटर्स अकाउंट को बढ़ाना होगा. डेटर्स अकाउंट डेबिट with the differential amount to सेल्स अकाउंट. सिंपल, हमने हायर प्राइस पे इन्वॉइसिंग किया तो हमारा डेटर्स को हम उस तरह बढ़ा देंगे. सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जो एक्सेप्टेंस दिया वो लोअर देन द इनवॉइस प्राइस दिया, यानी कि हमने बेचा था 100 पे, उसने कहा मैं इसे 80 पे ही बेच पाऊंगा. ओके, यू सेल इट, बट he is being able to sell it at a lower price. So can we not say we will have to reverse this entry to that differential amount, sales debit to debtors account? Okay, so that is how it is done. So we are reversing the entry to the extent it is lower than the invoice price. So this was situation number 1 where the goods were accepted by the retailer. अब अगर वो उस पर्सन को गुड्स समझ नहीं आए एंड ही वॉन्ट्स टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी कि रिटर्न करना चाहता है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सिंपल लग रहा है, वी विल हैव टू रिवर्स द सेल. तो हम एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. गुड इनफ? आई डोंट थिंक देयर वुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम हियर. हमें सेल को रिवर्स कर देनी है. हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया था जब गुड्स को भेजा था, अब हम उसे रिवर्स कर देंगे. ये तो हुई एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात. बट मान लीजिए आपका ईयर एंड आ गया एंड आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बट अभी तक कस्टमर ने बताया ही नहीं वो उन गुड्स के साथ क्या करना चाहता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम 2 एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले हम सेल्स को रिवर्स कर देंगे. अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और उस हिसाब से हम अपने रेवेन्यू को तब तक रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि वो कंफर्म ना हो गया हो. सिंस यहाँ रेवेन्यू कंफर्म नहीं हुआ है, सो वी विल बी रिवर्सिंग द सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. हम उसे सेल नहीं मानेंगे. अब एक बात बताइए, जो इन्वेंट्री रिटेलर के पास पड़ी है, क्या वो हमारी इन्वेंट्री नहीं है? क्या उस पर जो राइट्स है वो हमारे नहीं है? तो अगर हमने सेल दिखा दिया था, यानी वो इन्वेंट्री को भी हमने आउट कर दिया था, सो अब अगर हमें इन सेल्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो डू वी नॉट हैव टू टेक दैट इन्वेंट्री बैक इनटू आवर अकाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इन्वेंट्री इज आवर्स. उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास में है. तो इसीलिए we will have to pass the entry inventory account, inventory on approval basis account debit to trading account. This is how we will bring back the inventory in our accounts. अब एक बात बताइए, इस इन्वेंट्री को आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? Let's say you had sold an inventory worth 80 cost at 100 rupees और वो एंट्री अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपायरी हुई नहीं है पीरियड की. तो उसे हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़. वी आर वेरी वेल अवेयर कि अकाउंट्स में वी हैव टू वैल्यू द इन्वेंट्री और एट कॉस्ट और NRV, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर. सो अज्यूमिंग आर NRV वॉज हायर, वी विल रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट द कॉस्ट.
So please note that the value of inventory shall be lower of cost or net realizable value. So do not opt for the invoice price when you are recording the inventory. Students normally get mistaken over here. Don't be inventory को cost पे record करेंगे, and in case NRV दिया गया है which is lower than the cost, we will record the inventory directly at NRV. So are we clear till here? हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अगर किया जाता है, बिजनेस में कैजुअली किया जाता है, यानी कभी कभी किया जाता है, तो उसे हम ऑर्डिनरी सेल की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं. उसके बाद जो सिचुएशन अराइज होती है उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं. सो इफ़ द गुड्स आर एक्सेप्टेड, नॉर्मली कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस द एक्सेप्टेंस इज एट अ हायर और अ लोअर देन इनवॉइस प्राइस अमाउंट. अगर हायर है तो हम टू दैट एक्सटेंट अपने डेटर्स एंड सेल्स को बढ़ा देंगे. अगर लोअर देन द इनवॉइस प्राइस पर एक्सेप्टेंस दी गई है तो हम लोग सेल्स को और डेटर्स को दोनों को घटा देंगे. सेकेंड सिचुएशन कैन बी गुड्स आर रिजेक्टेड. अगर गुड्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो हम लोग अपनी जो सेल्स की एंट्री को रिकॉर्ड करके आए थे उसे हम रिवर्स कर देंगे. सो द एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. थर्ड सिचुएशन कैन बी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. So in that case we will pass the entry of reversal of sales account debit to debtors account, and हमें inventory को भी अपने accounts में लेके आना होगा. So what entry will be passed? Inventory on approval basis debit to trading account. Please note the value of inventory shall be lower of cost or net realizable value. It will not be the invoice price. Okay. So with this we can move ahead with the chapter. So can we quickly discuss an illustration? अभी बहुत सारे illustrations discuss किए जाएंगे so that our concepts get clear. Illustration 1. CE sends goods to his customers on sale or return basis. The following transactions took place during 2016 September 15. Sent goods to customers on sale or return basis at cost plus 33 1/3%, 1 lakh rupees. यानी कि सेल वैल्यू थी 100 एंड उसकी कॉस्ट पे 33.13% के ऊपर में उसे भेजा गया था. गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स 40,000, लाख का भेजा था, 40,000 का उसने रिटर्न कर दिया. नवंबर 25 को उसने अप्रूव कर दिया. कितने का? 40,000 का. सो 1 लाख माइनस 40 गिव्स 20,000 एंड दिस 20,000 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है अभी तक. तो क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइज CE records sale or return transaction as ordinary sales. You are required to pass necessary journal entries in the books of CE assuming that accounting year closes on 31st December 2016. तो 2016 की हमें अकाउंटिंग करनी है और इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है. तो शुरू करते हैं. In the books of CE जर्नल हमने ये सीखा था जैसे ही सेल की जाएगी हम उसे नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे. तो सबसे पहले सितंबर 15 की एंट्री होगी. 2016 की एंट्रीज चल रही है, सितंबर 15 को एंट्री की जाएगी. प्लीज स्पीक अप. द एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. being sale of goods. ओके. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ, गुड्स रिटर्न हो गए थे अक्टूबर 20th को वर्थ 40,000 रुपीज़. ओके.
सो अक्टूबर 20th को हम लोग टू दैट एक्सटेंट सेल्स को रिवर्स कर देंगे. सो सेल्स विल बी डेबिटेड विथ 40,000 rupees to debtors 40,000 rupees. Well enough? Being return of goods. Okay. Next transaction है received letters of approval from customers 40,000. You tell me, क्या इसकी कुछ ज़रूरत है हमें? यहाँ पे invoice price पे acceptance हो गई है, तो we will not be required to pass any further entry to record this. 31st December यानी कि year end पे goods with customers awaiting approval 20,000, इसको हमें अपनी inventory को record करना होगा. So 31st December को हम entry pass करेंगे. First of all, for the reversal of sales to debtors debit 20,000 rupees, being approval not received. And another entry will be for recording the inventory. So inventory on approval basis account debit. Please note, we have to record the inventory at cost. So we will have to find out the cost of the inventory worth 20,000 rupees. So let us make a note here. Note, cost of inventory is equal to, see, it mentioned that the goods were sold at cost plus 33 1/3%. So let the cost be 100, profit will be 33 1/3%, that is 33.333. Therefore the selling price would be 100 plus 33.333, that is 133.333 rupees. So can we write that 20,000 का छोटा भाई है 133.333. इसके बेसिस पे हमें निकालना क्या है? कॉस्ट विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाई 100. सो इसे हम लोग क्विकली कैलकुलेटर पे करें. 20,000 डिवाइडेड बाई 133.333 इंटू 100, we get 15,000 rupees. So we'll write C note because we have performed the calculation in our route and pass the entry as 15,000 rupees. So this is your solution where we have recorded the sales, then the return of goods, then approval not received. So we will record the reversal of sales and the inventory in our books. So can we quickly move on to question number 2. S Limited sends out its goods to dealers on sale or return basis. All such transactions, however, are treated as actual sales and are passed through the day book. Just before the end of the accounting year, on 31st March 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 rupees, cost 200 rupees on sale or return basis and debited to his account. Of these goods, on 31st March 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods, date of return has not yet expired. Pass necessary adjustment entries. Adjustment entries pass करनी है. We do not have to pass the entry for sales. हमें directly adjustment entries जो 31st March को pass करने की ज़रूरत है, we will be passing them. In the books of S Limited journal. So 2016 के 31st March को ये entries pass की जाएंगी and the first entry will be sales account for
50 items, 50 into the sales price was rupees 250, यानी कि 50 into 250 gives us 12,500 rupees. Debit 12,500 to the customer's account. So यहाँ पे customer का नाम दिया नहीं गया है, तो we will simply write to debtor's account 12,500 being goods returned. नेक्स्ट वी हैव टू अकाउंट फॉर दी गुड्स जिसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. सो कैन वी क्विकली काउंट हाउ मेनी गुड्स आर फॉर सच जिसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. हमने 200 भेजे थे, उसमें से 50 हमने रिटर्न कर दिया, 70 हमने सेल कर दिया, बचा कितना 200 माइनस 50 माइनस 70 यानी कि 80 गुड्स. सो 80 गुड्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे. सेल्स अकाउंट will be debited with 80 rupees 250. So 80 into 250 gives us debit 20,000 rupees to debtor's account. $20,000 being sale reversed as return period unexpired. ओके, अब हमें इस इन्वेंट्री को भी अकाउंट फॉर करनी है. तो 31 मार्च को हमें द कॉस्ट परसेंटेज वॉज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमें कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया गया है. 200 रुपीज़ की कॉस्ट का प्रोडक्ट था, तो हम लोग 80 रुपीज़ को एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे. Inventory on approval basis account 80 into 200 debit 16,000 to trading account 16,000 being inventory recorded at cost. Okay, so this was a very easy question. We just had to pass the adjustment entries. Let us quickly move to illustration 3. Cali company sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book. Just what we have been doing till now. Just before the end of the financial year, 100 gas containers which cost them 900 यानी कि 100 gas containers की cost थी 900 rupees each have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200 each यानी कि invoice price है 1200. Out of this 20 gas containers are sold at 1500 each यानी कि the acceptance is at a higher price than the invoice price. So we will be required to record this excess sale amount. So यहाँ हमें क्या करना है? You are required to pass the necessary adjustment entries for the purpose of PL account and balance sheet. Okay. So सबसे पहले हमें record करना होगा the excess sale amount. The date is not given, so let us quickly pass the entries. In the books of Cali Company Journal. So first entry will be to record the excess sale amount. Debtor's account. हम कितने को एक्सेस को रिकॉर्ड करेंगे? सारे 100 को या ओनली 20 को? सो वी विल बी रिकॉर्डिंग दैट फॉर 20 ओनली बिकॉज 20 वर सोल्ड एट 1500. सो द अमाउंट विल बी
20 into 300 rupees. Debit 6,000 to sales account 6,000 being sale of goods at higher price. Okay. Next, what do we have to do? 80 कंटेनर्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो इन 80 इन कंटेनर्स को हम लोग सेल्स को रिवर्स कर देंगे. सेल्स अकाउंट 80 to we have sold it at 1200. Debit 80 into 1200 gives 96,000 to the debtors account. 96,000 being sale reversed as no information received. Next, we will be recording the inventory. The cost was given as 900 rupees. So, inventory account 80 into 900, that is 72,000 से डेबिट होगा to trading account 72,000. Having completed this question, we can now move forward to the fourth illustration. E Limited sends out its accounting machines costing 200 each to their customers on sale or return basis. Such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book. Just before the end of the financial year, that is on March 24th, 2016, 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280 each, out of which only 90 accounting machines are accepted by the customers, 250 each. And as to the rest, no report is forthcoming. Show the journal entries in the books of the company for the purpose of preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. So, in the books of E Limited Journal, हम यहाँ सबसे पहले एक्सेस सेल्स अमाउंट को रिवर्स करेंगे. सो ऑन 2016 मार्च 24 को ये एंट्री होगी. द एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि कम प्राइस पे सेल किया गया. 90 machines at differential amount was 30, 280 minus 250. Sales account debit 2700 to debtors account 2700 being sale at lower price recognized. Okay. अब हमने भेजे थे 300 कंटेनर्स, उसमें से 90 का उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया. 210 के बारे में कुछ एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, तो हमें उससे ईयर एंड पे रिवर्स करना होगा. सेल्स अकाउंट 210 इनटू व्हाट वाज द इनवॉइस प्राइस 280. सो 210 into 280 gives 58,800 to debtors account. हमें सेल्स को रिवर्स करनी है. 58,800 being sales reversed as
no information is available. नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है. सो इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल बेसिस कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, विद द कॉस्ट. सो 210 कंटेनर्स की कॉस्ट थी, लेट्स क्विकली फाइंड आउट. द कॉस्ट वाज 200 रुपीज. 210 into 200 gives 42,000 to the trading account. I think अब questions easy लगने लगे होंगे because we are following a standard format. जो हम normal transaction को record करने के लिए करते हैं, उन्हीं transactions को हमें यहाँ पे record करना है. So being inventory recognized at cost. Okay, let us now move to the fifth illustration, जो कि इस टॉपिक का लास्ट illustration है. इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. So let's quickly move on to it. A Limited sends out goods on approval to few customers and includes the same in the sales account, जो कि हम करते आ रहे हैं. On 31st March 16, the trade balance stood at 1 lakh rupees, which included 7,000 goods sent on approval basis, against which no intimation was received during the year. क्या ये हमारा सेल होना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल्स में 7,000 वो सेल है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. क्या ये हमारा सेल है? नो. सो कैन वी रिकॉर्ड इट एज अ ट्रेड रिसीवेबल? नो. So we will be reducing 7,000 from 1 lakh rupees in the balance sheet. These goods were sent out at 25% over and above the cost price and were sent to Mr. X 4,000, Mr. Y 3,000. Mr. X sent intimation of acceptance on 30th April. Year end तक तो नहीं था, 30th April को उसने acceptance दिया. And Mr. Y returned the goods on 10th April 16. मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि 31st मार्च की एंट्रीज ये रिक्वायर्ड है, पहले की एंट्रीज नहीं रिक्वायर्ड है. एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 16. यानी हमें बैलेंस शीट भी बनानी है. शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग April 16, यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो भी हमें दिखानी होगी. The value of closing inventories as on 31st March 2016 was 60,000. So please note, we have got the balance of trade receivables and we have got the balance of inventories. So let us quickly pass the entries first and then we will make the final accounts, that is the balance sheet. So in the books of, what's the name? A. Okay. Journal. सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होगी फॉर द गुड्स फॉर विच नो इंटीमेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, दैट इज गुड्स ऑफ 7,000 रुपीज़. हम इसे रिवर्स कर देंगे. ऑन 31st March 16, द एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़ to Mr. X to Mr. Y. The amounts will be 4,000 and 3,000. Okay. Next entry will be to record the inventory in our books. So inventory on approval basis, debit. हमें इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. तो इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी दैट दे वर सोल्ड एट 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट. सो लेट द कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट मार्जिन बी 25, सेलिंग प्राइस वुड बी 125. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वर्थ 7,000 रुपीज़. सो 7,000 इसका छोटा बाई है 125 एंड हमें निकालना है cost, which is represented by 100. So 7,000 divided by 125% gives 5,600 rupees.
So inventory on approval basis account to trading account will be 5600 rupees. नेक्स्ट हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर एक्स. सो ऑन 30th April 30, 2016 वी विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स पहले रिवर्स कर दिया था. सो वी विल हैव टू मेक श्योर दैट द सेल गेट्स रिकॉर्डेड अगेन. सो वी विल पास द एंट्री एज मिस्टर एक्स डेबिट. उसको सेल प्राइस था 4000 का टू सेल्स अकाउंट 4000 being sale of goods. अब एक बात बताइए, हम ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स को रिवर्स कर चुके हैं जो कि हमको y को हमने किया था. अब जब y उसे रिटर्न कर रहा है, क्या हमें एंट्री रिवर्स करने की या कोई फ्रेश एंट्री पास करने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज हम ऑलरेडी उसे रिवर्स कर चुके हैं. सो देर इज़ नो नीड टू रिकॉर्ड एनी एंट्री फॉर दिस. सो द जर्नल पार्ट इज complete. Now we are required to show the balance sheet. So let us quickly prepare the balance sheet of A. Balance sheet A की बनानी है. So balance sheet as on 31st March 16. So this is the liabilities side of a balance sheet and this is the asset side. हमें रिकॉर्ड करनी है इन्वेंट्रीज को और ट्रेड रिसीवेबल्स को. सो द इन्वेंट्रीज बैलेंस was given at 60,000 rupees. अब हमें उसे इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल बेसिस को ऐड करना है. इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल बेसिस and that was for 5600. So the total will be 65,600 rupees. फिर हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस दिया गया था जिसमें कि लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी इट. 1 लाख का बैलेंस था 7000, यानी कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का अमाउंट था 4000 एंड 3000 का. जैसे ही हम ये एंट्री पास करेंगे तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाएगा. सो 1 लाख रुपीज़ बैलेंस दिख रहा था, लेस अप्रूवल नॉट received. And that is for 7,000 rupees. So outer column में जाएगा 93,000 rupees. So our question is complete. Do you realize कितना सिंपल होते जा रहे हैं? We simply have to keep in mind कि हमें इससे ऑर्डिनरी सेल्स मानना है. जब सेल करेंगे तो डेटर्स टू सेल की एंट्री मारेंगे. एक्सेप्ट हो जाए तो देर इज़ नो नीड ऑफ एन एंट्री अनलेस उसे हायर या लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट किया जाए. रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एंट्री पास करेंगे रिवर्सल की, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. ईयर एंड पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि उस इन्वेंट्री के साथ क्या किया गया, यानी उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो हम उसे रिवर्स कर देंगे बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. हम एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस, और हमें इन्वेंट्री को भी अपनी इन्वेंट्री माना बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली आर प्रॉपर्टी. सो वी विल पास द एंट्री इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. So with this we close the topic of when the goods are sold casually. ठीक है. Next topic that we have to discuss is when the business sends goods frequently on sale or return basis. हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, इस केस में एक रजिस्टर बनता है सेल और रिटर्न रजिस्टर, जिसमें कि 4 कॉलम होते हैं. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स रिजेक्टेड एंड बैलेंस. इन सभी गुड्स के डिटेल रिकॉर्ड करने होते हैं. तो हर एक कैटेगरी के लिए हमें डेट, जिस डेट को भेजा गया, पर्टिकुलर्स यानी कि नेम ऑफ द कस्टमर, अमाउंट. सो अकॉर्डिंगली ये पूरा टेबल फिल कर दिया जाता है. सो जब ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे
एट ईयर एंड या मंथ एंड जब भी हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, हम लोग इसके ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हुए 2 एंट्रीज पास करेंगे. कैन यू क्विकली गेस व्हाट दीज एंट्री वुड बी? हमने गुड्स भेजा तब हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे. सो गुड्स हैव बीन सेंट, वी विल नॉट रिकॉर्ड. गुड्स हैव बीन अप्रूव्ड मीन्स व्हाट? गुड्स का सेल हो गया है. सो फॉर गुड्स अप्रूव्ड, नंबर 1 वी विल बी रिक्वायर्ड टू पास एन एंट्री. नंबर 2 गुड्स रिजेक्टेड. क्या हमें गुड्स रिजेक्टेड की एंट्री पास करने की ज़रूरत है? अगर हमने गुड्स सेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी तो गुड्स रिजेक्ट करेंगे तो क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हमने गया था, वापस आ गया, हम लोग उसको नील इफेक्ट हो गया, रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बैलेंस अमाउंट यानी कि वो गुड्स जिसके लिए ना ही अप्रूवल मिला है ना ही वो रिजेक्ट हुए हैं, वो ईयर एंड पे ऐसे ही पड़े हैं, क्या हमें उसे उन इन्वेंट्री को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है? येस, बिकॉज इट इज़ माई प्रॉपर्टी. अभी तो यू मस्ट बी एबल टू से इट अलाउड. तो फॉर गुड्स अप्रूव्ड, what will be the journal entry? We will be recording the sale. So the entry will be debtors account debit to sales account. Simple. And for balance goods at year end, हम लोग already ये सीख चुके हैं entries. The entry will be inventory account to trading account at cost, or NRV, whichever is lower. Let us now quickly discuss an illustration on this topic. A firm sets goods on sale or approval basis with customers having the choice of returning the goods within a fortnight. What is a fortnight? Fortnight means a period of 2 weeks, that is 14 days. During March 2018, following are the details of goods sent. Goods sent का details दिया हुआ है, so let us record it. March 5 को A, 1200, 11th को B, 2500, 17th को C, 1500, 20th को D, 2800. ये total goods भेजे गए थे. By the end of March 2018, A had signified that he had accepted the goods. Acceptance मिल गया. While C returned 1000 worth of goods. हमने भेजा था 1500 का, 1000 का रिटर्न कर दिया, मीन्स 500 का रिटेन कर लिया. Find the sale for March 2018 and value of goods with customers as on 31st March 2018, assuming that goods are sold at a profit of 40% on cost. हमें पहले क्विकली ये जो गुड्स का गया था वो डिटेल हमें रिकॉर्ड करना है. सो 2018 को ये एंट्रीज पास होगी. सबसे पहले मार्च 5 को गुड्स गया था ए को वर्थ 1200 रुपीज़. मार्च 11 को गया बी को वर्थ 2500 रुपीज़. मार्च 17 को सी को गया वर्थ 1500 रुपीज़. एंड मार्च 20th को गया था डी को एट 2800 रुपीज़. इसमें से अब हमें क्या डिटेल गया? ए हैड सिग्निफाइड दैट ही एक्सेप्टेड द गुड्स. ठीक है, तो 2018 को कब हम लोग इसका फोर्टनाइट एक्सपायर होगा? मार्च 5 में 14 ऐड कर दीजिए. मार्च 19 को ए का गुड्स अप्रूव्ड हो गया 1200. वाइल सी रिटर्न 1000 वर्थ ऑफ गुड्स. सी का पीरियड कब खत्म हो रहा था? 14 डेज का, 31 मार्च को. मार्च 31 सी ने 1000 रुपये का रिटर्न किया, मीन्स व्हाट? 500 का एक्सेप्ट कर लिया. सो गुड्स एक्सेप्टेड कॉलम में हम ये डिटेल भरेंगे और रिजेक्टेड कॉलम में 1000 रुपये की डिटेल भरेंगे. अब बाकी यानी कि बी और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो मार्च 11 से 14 डेज अगर हम लोग ऐड करें तो 25th को उसका टाइम एक्सपायर हो गया. अगर 25th तक उसने कुछ नहीं बोला, इट मीन्स व्हाट? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है. तो हम लोग यहाँ पे मार्च 25th को वी विल पास द एंट्री ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. हमें मान लिया कि वो सेल हो गया है 2500 का. क्या हम ये सेम चीज़ डी के लिए कर सकते हैं? क्या उसका 14 डेज का पीरियड एक्सपायर हुआ है? 20 को सेल किया था तो उसका 14 डेज का पीरियड अप्रैल में जाके एक्सपायर होगा. सो दिस विल रिमेन इन द बैलेंस कॉलम.
सो नाउ वी हैव पुट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन दिस रजिस्टर. अब ईयर एंड पे आके हम इसके टोटलिंग करेंगे. सो गुड्स रिजेक्टेड का टोटल वाज 1000, दिस इज 4200 एंड 4200 दिस कम्स टू 8000 रुपीज़. अब हमने जाना था कि हमें जो जर्नल्स पास करनी है वो सिर्फ दो चीज़ों की पास करनी है, यानी कि गुड्स अप्रूवल की और इन्वेंट्री की. सो ये हम किसकी रिकॉर्ड कर रहे थे? इन द बुक्स ऑफ अ फर्म. सो सबसे पहले जो हमें जर्नल रिकॉर्ड करनी है दैट इज़ फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स. तो वी विल पास द एंट्रीज रिकॉर्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम. हम लोग ये एंट्री 31 मार्च को पास करेंगे फॉर ईच वन ऑफ द कस्टमर्स. सो एंट्री विल बी ए डेबिट 1200, B debit 2500, C debit 500 to sales. The amount will be 4200 being sale recorded. Okay. नेक्स्ट हमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है 31 मार्च को. सो इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. तो हौले हौले इसको सोचते हैं कि अमाउंट क्या होगा. सो वन थिंग वाज क्लियर, हमें रिजेक्टेड का कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है, 1000 का हमें कुछ नहीं करना है. 2800 का कॉस्ट निकालना है. वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन 40% ऑन कॉस्ट बेचा जा रहा है. सो लेट द कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट मार्जिन 40, सेल प्राइस 140. सो कैन आई से कि मेरा 2800 का छोटा भाई है 140. हमें निकालना क्या है? कॉस्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 100. सो 2800 डिवाइडेड बाय 140% गिव्स 2000 रुपीज. सो वी विल रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट 2000 being inventory recorded. So we have successfully completed the illustration on the transactions where the goods are sold frequently on sale or return basis. So this is the answer for that. Okay, so that is how we move about it. हमने क्या डिस्कस कर लिया है? We have discussed where the transactions take place casually and frequently. अब हम टॉपिक पे पहुंचे हैं where the business sells goods numerously, यानी कि उसका नॉर्मल तरीका यही है कि वो सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल्स करेगा. इस केस में फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड: सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर. और जैसा कि मैंने पहले बताया था, दीज आर मेमोरेंडम बुक्स. तो ये दीज रिकॉर्ड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो व्हाट डज द सेल और रिटर्न डे बुक लुक लाइक? यहाँ कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स यानी कि जिस पार्टी को हमने सेल किया है उसका नाम लिखेंगे, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट. अगेन ये डेट में आएगा उसका डेट जहाँ जबकि सेल हुआ या रिटर्न हुआ. सो दिस विल बी दी कॉलम्स. और इस डे बुक के बेसिस पे हम सेल और रिटर्न अकाउंट बनाएंगे जहाँ पे इसी डे बुक को समराइज करके लिख दिया जाएगा. So this is a normal format of a ledger: date, particulars, amount, date, particulars, amount. अब हम ऑलरेडी ये सीख के आए हैं कि जो हमने ये सेल और रिटर्न अकाउंट बनाया है उसके बेसिस पे हमें किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है. सबसे पहले गुड्स अप्रूवल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. वी नो द रीजंस नाउ. सो द एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. And for the balance goods, inventory on approval basis account debit to trading account. Clear? ये हम already सीख के आए हैं. Why the entries are needed only for goods approved and for the balance goods. Now we have reached the last illustration of this topic.
X supplied goods on sale or return basis to customers, the particulars of which are as under. Date of dispatch 10/12/16, parties name ABC, amount 10,000, no information till 31st December 2016. Okay. 12/12 को DEF 15,000 रिटर्न कर दिया गया है. GHI 12,000, गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न, यानी कि 10,000 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. DEF 16,000, 16,000, गुड्स रिटेन्ड ऑन 24/12/16. रिटेन्ड वर्ड है, प्लीज नोट, रिटर्न्ड नहीं है. रिटेन्ड मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है. ABC 11,000, गुड्स रिटेन्ड ऑन 20th December 2016. GHI 13,000, no information till 31st December 2016. Goods are to be returned within 15 days from the date of dispatch, यानी कि अगर कोई information नहीं दिया 15 days के अंदर हम उसे sales मान लेंगे. The books of X are closed on 31st December 2016. Prepare the following accounts in the books of X. Goods on sale or return, sold and return day book, यानी हमें day book बनानी है और return total account बनाना है. तो let us now quickly solve this question. Solution. Sale और return day book हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आए हैं. सो लेट अस क्विकली पुट द डिटेल्स वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले 2016 के एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग ऑन, ये क्विकली हम लोग डिटेल्स को विल बी कॉपिंग दीज. 10th 12th को ABC अमाउंट 10,000, 12th को DEF the amount is 15,000. 15/12 GHI the amount is 12,000. 20th December the party is DEF for 16,000. 25th December the party is ABC, the amount is 11,000. On 30th December the party is GHI and the amount is 13,000. Okay, so let us quickly total these. 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000, 13,000. So total is 77,000 rupees. अब हमें जो पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रिकॉर्ड करते हैं. ABC ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया 31st दिसंबर तक, हम क्या वेट करेंगे? नहीं करेंगे. 15 दिन बीत गए, हम उसे सेल्स मान लेंगे. सो ऑन 25th of December we will treat it as sold. 15,000 का रिटर्न कर दिया गया था, तो वी विल रिकॉर्ड इट इन द रिटर्न्स कॉलम. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, 12,000 का गुड्स में से 2,000 रिटर्न कर दिया 20 तारीख को, ठीक है. और हम लोग सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? रिटर्न से हमें वैसे भी मतलब नहीं है. 10,000 की सेल्स को कब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन डज द पीरियड ऑफ 15 डेज पास? ऑन 30th of December. So on 30th of December we will record the sales of 10,000 and the balance has been returned. Okay, next we have 16,000 का details. goods retained है, तो यानी कि retained है तो 24th को accepted है. Similarly for ABC also goods retained है on 20th, तो 24th and 28th को हम लोग इसे एक्सेप्टेड कॉलम में डाल देंगे. GHI के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 15 डेज भी अनएक्सपायर्ड है, तो हम लोग उसका कुछ नहीं करेंगे. इट हैज नाइदर बीन सोल्ड नॉर बीन रिटर्न्ड. सो लेट अस क्विकली टोटल दीज टू कॉलम्स. कम्स टू 47,000 हियर. इसका टोटल आया 17,000. इसके बेसिस पे हमें बनाना है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. हमें इससे सेल नेचर का अकाउंट मान के एंट्रीज पास करनी है. इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. सो वी आर इन पासिंग दीज एंट्रीज इन 2016 का दिसंबर मंथ. 31st दिसंबर को
हम मानेंगे बाय goods sent on sale or return. So the total was 77,000. इसमें से किसका क्या हुआ? 31 दिसंबर को ही एंट्रीज पास करेंगे टू सनरीज सेल कितना हुआ 47,000 का, टू सनरीज रिटर्न दैट इज 17,000 रुपीज़. बैलेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, सो वी विल सिंपली राइट टू बैलेंस सी डी. सो लेट अस क्विकली फाइंड इट आउट. 47,000 एंड 17,000 को हम लोग 77,000 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13,000. That is all we are required to do in this question. 77,000, here also 77,000. So we have successfully completed this illustration where we was required to prepare the memorandum books of accounts in a case where the business sends goods to the retailers on approval basis on numerous times. So we have completed all the topics which are required under sale of goods on approval basis. Firstly, अब हम एक रिविजन कर लेते हैं क्विकली. फर्स्टली हमने डिस्कस किया था वेयर द बिजनेस सेंस गुड्स ऑन कैजुअल बेसिस. कभी कभी सेल करते हैं हम लोग, उसे ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड करके जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. उस पर हमने 5 इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए. आई थिंक द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. एंट्रीज आर वेरी सिंपल. सेल को रिकॉर्ड करने के लिए डेटर्स टू सेल, एक्सेप्ट हो जाए तो नो एंट्रीज रिक्वायर्ड, रिजेक्ट हो जाए तो सेल्स को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. एट ईयर एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सो वी विल रिवर्स द सेल एंड वी विल अकाउंट फॉर द इन्वेंट्री इन आवर बुक्स. नेक्स्ट वी डिस्कस द सिचुएशन वेयर द गुड्स आर सेंट टू द बिजनेस ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. कभी कभी जाता है बट इट इज़ मोर देन अ कैजुअल बेसिस वन. उस केस में हमें एक सेल और रिटर्न रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें 4 कॉलम होते हैं. नंबर 1 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, number 2 goods approved, number 3 goods rejected and number 3 is for balance. Entries हमें किसकी पास करनी होती है? For approval and for the balance goods. Similarly, where the goods are sent numerously, हम वहाँ पे मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन करते हैं जहाँ पे एक डे बुक मेंटेन की जाती है जिसमें कि गुड्स सेंट, अप्रूव्ड और रिटर्न की डिटेल्स मेंटेन की जाती है और इस डे बुक को समराइज कर लिया जाता है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में. इस टोटल अकाउंट की बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है. द जर्नल एंट्रीज आर सेम एज वी हैव डिस्कस्ड. सेल को रिकॉर्ड करेंगे यानी कि अप्रूवल को रिकॉर्ड करेंगे विद द एंट्री डेटर्स टू सेल और हमें जो इन्वेंट्री अकाउंट फॉर करनी है उसे हम कॉस्ट पे इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट करके पास कर लेंगे. So friends, we have successfully completed the topic of sale of goods on approval basis. I hope you enjoyed and are able to understand the concepts in details. कुछ भी क्वेरी हो सो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैंने इस फाइल को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ फील फ्री टू डाउनलोड. एंड कुछ भी क्वेरीज हो जस्ट लेट मी नो. थैंक यू, बाय बाय.